So in this fourth revision class, I'm just going to revise nitrogen and sulfur, reversible reaction followed by nitrogen and sulfur. Okay, so let's talk about the reversible reaction. Basically, there are two types of chemical reactions: irreversible reactions and reversible reaction. Basically, the concept of chemical equilibrium is only applicable on the reversible reaction. In exam, they normally asking the definition of a reversible reaction. Okay. Okay, beta. So I said at today's class, I'm just going to revise the reversible reaction followed by the nitrogen and sulfur. I'm keeping a session of 30 to 40 minutes today. Okay, so let's talk about the reversible reactions. Basically, there are two types of chemical reaction: irreversible reaction and the reversible reaction. And I was saying that in exam, they're normally asking about the definition of a reversible reaction. Okay, so the reaction that only goes in one direction are called basically the irreversible reaction. As a chemical reaction, to say forward direction में जाएं, they are called basically irreversible reaction. In a similar way, the reaction that goes in both forward and backward direction, the reaction that can go in both directions, that is the forward direction and the backward direction, are called the reversible reaction. You should know the definition of a reversible reaction. ठीक है, लिखनी आनी चाहिए, बस आसान सा कॉन्सेप्ट है. कैसे केमिकल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में जाएं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आर कॉल्ड द रिवर्सिबल reaction. In basically a reversible reaction, there is a concept of a dynamic equilibrium. ठीक है, होता है क्या है, देखिए, initially when you added two reactants, let's suppose you have two reactants A and B, आपने उन दोनों को ऐड किया, तो क्या होगा, initially the amount of product which is C and D is 0. So initially there's no backward reaction taking place because no product is being formed yet. There is only a forward reaction which is taking place, and the speed of the forward reaction is maximum. Why? Because we have the maximum amount of reactant present initially. ठीक है, clear? So क्या होगा जब आप दो reactant को mix करेंगे, so the rate of forward reaction is maximum and the rate of backward reaction is 0. But as the reaction proceed, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनती रहेगी, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता रहेगा, एंड जैसे जैसे प्रोडक्ट बनती रहेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता रहेगा, क्योंकि रिएक्टेंट यूज्ड अप होते जा रहे हैं. ठीक है, एंड इज अ कंडीशन, एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equals to the rate of backward reaction. यानी जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, उसी स्पीड के साथ बैकवर्ड रिएक्शन होगा. दिस कंडीशन इज बेसिकली कॉल्ड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम. द कंडीशन is called the dynamic equilibrium. अच्छा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में इशू क्या है कि after the dynamic equilibrium there is no change in the amount of reactants or there is no change in the amount of product. Means the amount of reactant and the amount of product become constant. ठीक है, क्या हो जाते हैं, constant हो जाते हैं. Clear? So ये इस डायग्राम से आपको अंदाजा हो रहा है कि blue line is the rate of forward reaction. So at time 0 the rate of forward reaction is maximum, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, रिएक्शन प्रोसीड करता रहा, rate of forward reaction कम होता गया. In a similar way, the green line represents the rate of a backward reaction. जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता रहेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होते रहेगी, the rate of backward reaction increases, and there is a condition at which the rate of forward reaction becomes equals to the rate of backward reaction. That's basically called the dynamic equilibrium. ठीक है, तो this highlighted area is basically the concept of a dynamic equilibrium. They might ask you about the definition of a dynamic equilibrium. In a reversible reaction, when the rate of forward reaction is equals to the rate of
बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और आपको एक पता होनी चाहिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। और एक की पॉइंट ये याद होना चाहिए कि at dynamic equilibrium, the amount or the concentration of reactant and product are constant. Is a common error. There is a common error that most of the student write that at dynamic equilibrium, the concentration of product and reactant become same. No, it's not same. They become constant. ठीक है, जैसे अगर मैं Haber's process की example दूं, which is the example here, N2 plus 3H2 forming 2NH3, and it is represented by a reversible arrow. It means that it is a reversible reaction, so उसमें dynamic equilibrium आएगा. और अगर at dynamic equilibrium the amount of reactant or product same होती तो 50% reactant होते 50% product होनी चाहिए थी. But in this particular reaction the dynamic equilibrium is attained when only 17% ammonia is formed. ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि amount of reactant and product same होना जरूरी नहीं है. The key point is the amount of reactant and the amount of product must be constant. क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. सही है, ठीक है, क्लियर? एंड आफ्टर द डायनेमिक इक्विलिब्रियम देयर इज नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. ठीक है, क्लियर? अब देखिए एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में द मेन कंसर्न इज टू गेट मोर एंड मोर प्रोडक्ट. But after 10%, 20% or 30% product form, the dynamic equilibrium is attained. It means that you won't be able to get more product. So what we use the Lee-Chatter's principle to increase the product or to shift the equilibrium in a particular direction. ठीक है, बेसिकली ली-चैटलर्स प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए. ए लेवल ओ लेवल्स में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई भी सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम पे, any system is a dynamic equilibrium, and if disturbed by any change in concentration, temperature, or pressure, the equilibrium will move in a direction to regain the equilibrium. मतलब आपका एक सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में था, it was at a balanced condition, and you disturb that equilibrium either by changing the concentration, pressure, temperature, then it will respond in a way to regain the equilibrium. ठीक है, वापस से equilibrium regain करने की कोशिश करेगा. तो ऐसे सेट की ये डेफिनेशन कम पूछी जाती है, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ताकि आपको शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम समझ में आए. ठीक है, क्लियर? सो अब तक क्या की पॉइंट है? की पॉइंट है बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन याद होनी चाहिए. ठीक है, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम. सही है, एंड द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द डायनामिक इक्विलिब्रियम. फैक्टर अफेक्टिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू स्टडी द फैक्टर दैट शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम either towards the product side, right hand side, or towards the shifting of equilibrium. Clear? And the first factor is concentration. Concentration में सिर्फ एक की पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है? और वो की पॉइंट ये है कि सिस्टम ऑलवेज, देखो मैंने रेड से लिखा हुआ है, क्लियर? सिस्टम, दोबारा सुनिए, सिस्टम ऑलवेज मूव फ्रॉम एक्सेस टू डेफिशिएंसी. अब समझिए, नाउ यू हैव अ केमिकल रिएक्शन A plus B फॉर्मिंग C plus D, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, यू एडेड मोर रिएक्टेंट. जब आपने ज्यादा रिएक्टेंट ऐड कर दिए तो एक्सेस किस साइड पे हुआ? रिएक्टेंट साइड पे. डेफिशिएंसी किस तरफ हुई? प्रोडक्ट साइड पे. तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड. स्टार्ट मेकिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट टू रीगेन द इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो अगर मोर रिएक्टेंट ऐड किए, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. मोर प्रोडक्ट ऐड किए, इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा. ठीक है ना? अगर आपने रिएक्टेंट रिमूव कर दिए, इफ यू रिमूव द रिएक्टेंट, क्लियर, तो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑन द रिएक्टेंट साइड, क्योंकि कम हो गया, आपने रिमूव कर दिए, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द की कॉन्सेप्ट. क्लियर? तो कंसंट्रेशन आसान है, रिएक्टेंट ऐड करोगे प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट ऐड करोगे रिएक्टेंट साइड पे शिफ्ट होगा. क्लियर? क्लियर? तो आसान सा कॉन्सेप्ट है. इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज इजी इन केस ऑफ इफेक्ट ऑफ फॉर इफेक्ट ऑफ प्रेशर.
concept is only valid for the reaction in which the gases are involved. जब भी आपके पास gaseous reaction होगा, तो you can talk in terms of concentration or amount or in terms of pressure. अब बात करते हैं कि how the pressure effect. याद रखिएगा, एक key point यहाँ भी याद रखिएगा. On increasing pressure, equilibrium shift toward higher mole side towards the lower mole side. अब word moles आ गया तो क्या आपको moles calculation करनी है? No. आसान सी बात यह है कि you have a balanced chemical equation, उसमें जो भी coefficients लिखे हुए add them up. ठीक है, हायर मोल्स का मतलब लार्ज कोफिशिएंट ऑन दैट साइड, लाइक N2 plus 3H2, 1 mole of nitrogen reacting with 3 moles of hydrogen, so you have 4 moles in this balance equation on the reactant side, forming 2NH3, like you have 2 moles of ammonia. You should have a balanced chemical equation for this one. ठीक है, so on increasing pressure, the equilibrium from higher to lower mole side, on decreasing the equilibrium will shift from lower to higher mole side. ठीक है, जिस तरफ प्रेशर ज्यादा, मोल ज्यादा होते हैं, वहां से कम की तरफ शिफ्ट होता है अगर आपके पास अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो ब्लैक से हाईलाइटेड है, दिस इज द रीजन लाइन दैट यू शुड मेमोराइज. ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए. क्लियर बेटा? सो और इन अ सिमिलर वे, इफ देयर इज और इन डिक्रीजिंग वाली भी लाइन याद होनी चाहिए कि आपको डिक्रीज करने पे लोअर से हायर की तरफ शिफ्ट होता है. ठीक है बेटा, so these are the key point about the shifting of equilibrium on by changing pressure. ठीक है, आसान सी बात है, बस ये दो की पॉइंट याद रखिएगा. Now the question is, if you have a balanced chemical equation जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो, ऐसे रिएक्शन में there is no effect of pressure. जैसे इक्वेशन है, you can see you have 2 moles on the reactant side and you have 2 moles on the product side. So in this type of chemical reaction, there is no effect of pressure. भले दोनों तरफ गैसेस हैं लेकिन मोल्स बराबर हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. सही है. कॉन्सेंट्रेशन में एक्सेस से एफिशिएंसी की तरफ जाएगा ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन. प्रेशर में ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर हायर मोल से लोअर मोल, डिक्रीज करने पे लोअर टू हायर. नाउ फॉर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहां भी की पॉइंट है, सिर्फ याद रखने वाली बात यह है कि इफ द ओवरऑल एनर्जी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नेगेटिव, the overall energy change represents the energy change of a forward reaction. Backward reaction same with the opposite sign. यानी अगर forward negative है तो backward positive होगी, अगर forward positive है तो backward negative होगी. ठीक है, अब इसके बाद आपको सिर्फ दो की पॉइंट्स याद रखने. that exothermic, the reaction that release energy, they required low temperature. Endothermic required high temperature. So exo low, endo high, ये की पॉइंट याद रखिएगा. ठीक है, अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एज एंडोथर्मिक रिक्वायर्ड हायर टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स अ डायरेक्शन व्हिच इज एन एंडोथर्मिक डायरेक्शन. ठीक है, जैसे पर्टिकुलर एग्जांपल है नाइट्रोजन की अमोनिया फॉर्मेशन की, द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव. सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज द बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा. ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड इज एंडोथर्मिक. ऑन डिक्रीजिंग द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. ठीक है, बिकॉज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक reaction. I hope this key point is clear. तो यहाँ भी you have to memorize this key factor. On increasing temperature, equilibrium will shift towards endothermic positive side. On decreasing, तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिएगा, ओवरऑल एनर्जी चेंज देखिएगा, उसके अकॉर्डिंगली उसे आपने आंसर करना है. आसान सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है. Catalyst have no effect on the position of equilibrium. कोई इफेक्ट नहीं. It do not shift the equilibrium in any direction. It only helps to attain equilibrium early. सिर्फ क्या करता है, सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी लेकर आ जाता है. ठीक है, by equally speeding up the forward और backward reaction. कैटलिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को स्पीड अप करता है, बिकॉज ऑफ विच द इक्विलिब्रियम अटेन, जल्दी आ जाता है इक्विलिब्रियम. क्लियर? तो कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. आपको याद होगा रिवर्सिबल रिएक्शन की पॉइंट है बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की पॉइंट है. इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आसान है, याद हो गया होगा अब तक. इफेक्ट ऑफ प्रेशर हायर टू लोअर, on increasing lower to higher, on decreasing no effect if the moles are same.
effect of temperature, yes, positive side पे shift होगा if you increase the temperature, negative side पे shift होगा if you decrease the temperature, and catalysts have no effect on the position of equilibrium. ठीक है? So by keeping this reversible reaction in mind, let's talk about the nitrogen and sulfur. इसमें कुछ memorizing stuff है इस topic में. Just wait for 2 minutes and then I'll continue. Sir. Hello. Sir. Okay, beta. So let's start with the nitrogen and sulfur. ठीक है? देखिए, as I said many times and saying it again, इस रिवीजन का मकसद सिर्फ ये है कि आपको रीइंफोर्साइज करवाना कि क्या क्या चीजें आपको याद होनी चाहिए. याद हैं तो आपका एक क्विक रिवीजन मिल जाएगा. इन स्विफ्ट रिवीजन है, जल्दी जल्दी. ठीक है? सो नाइट्रोजन इज N2. A bit of introduction about nitrogen. It's a non-metal, group 5 of the periodic table, proton number 7, neutron number 14. Diagram of nitrogen. Air contain about 78% of nitrogen, and nitrogen. Sir. बोलो बेटा प्लीज. सर एक क्वेश्चन है, आप इक्विलिब्रियम वाले में जाएं, उसमें सर आपने जो इक्वेशन लिखी है उसमें गैस है, जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस इक्वल्स टू HI. बिल्कुल है, बिल्कुल है. हाँ, तो सर अब गैस में अगर लिखा हो कि हाउ कंसंट्रेशन अफेक्ट दिस, तो कंसंट्रेशन ऑफ गैस तो चेंज हो नहीं सकती ना. नहीं, वेट करो. देखो, फॉर गैसेस कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों की टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं. गैसेस का प्रेशर भी होता है, कंसंट्रेशन भी होती है. देखो, कंसंट्रेशन हर उस चीज की होगी जिसके बाद नंबर ऑफ मोल्स होंगे और इट ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम. ठीक है? तो गैसेस हैव अ नंबर ऑफ मोल्स, हो सकते हैं ना मोल्स, और उसका वॉल्यूम भी है. तो याद रखना, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कुड बी फॉर लिक्विड्स एंड कुड बी फॉर गैसेस, दोनों के लिए होती है. इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज ओनली फॉर गैसेस. तो ठीक सर है? अगर क्लियर हुआ? लिक्विड और सॉलिड हाँ, होगा हाँ. तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं होगा. नो, कभी भी नहीं होगा. प्रेशर के लिए गैस होना जरूरी है, कंसंट्रेशन के लिए लिक्विड या गैस होना जरूरी है, और सॉलिड को हम इग्नोर करते हैं हमेशा. सॉलिड को हम कंसिडर ही नहीं करते. ठीक है? इज इट क्लियर? ओके सर. ओके बेटा, चलो. सो ठीक है जी. सो नाइट्रोजन के बारे में एक बहुत बहुत की फैक्टर. अच्छा, ये एमसीक्यूज और कुछ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने हैं जो आते हैं. नाइट्रोजन इज वेरी अनरिएक्टिव. बार बार पूछेगा व्हाई नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव, व्हाई नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव. तो आंसर है नाइट्रोजन इज वेरी अनरिएक्टिव ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम. ठीक है? A high energy is required to break these covalent bond. That's why all the reactions of nitrogen have a higher activation energy. ठीक है? याद रखिएगा. क्लियर? हायर एक्टिवेशन एनर्जी होती है. इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है. ठीक है? अमोनिया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नॉर्मली एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करते हैं और अमोनिया फर्टिलाइजर में यूज अप होता है. तो ये बहुत की पॉइंट है. नाइट्रोजन नॉन मेटल डायटोमिक गैस है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, डॉट एंड क्रॉस पता होनी चाहिए. सोर्स इज बेसिकली द एयर that contains 78% around nitrogen. Fractional distillation से आप इसको obtain करते हैं. Nitrogen is unreactive due to a triple covalent bond, strong triple covalent bond, and the activation energy, because of which the activation energy of all the reactions of nitrogen is very high. ठीक है? इसलिए बहुत slow react करते हैं या नहीं react करते, less reactive होते हैं. ठीक है? And the main compound of nitrogen, the ammonia and oxides of nitrogen. Let's talk about the ammonia NH3 gas. सबसे पहले ammonia NH3 is basic in nature and it has a pungent smell. ठीक है? It is a weak base because it dissolve in water,
forming NH4 positive and OH negative ion. As it is giving OH negative ion, a small amount of OH negative ion because it is a weak base. Okay, clear? And you should know the dot and cross diagram of this ammonia. आपके सामने dot and cross diagram है. Nitrogen 5 electron. Out of these 5 electron, 3 electrons are making 3 covalent bond with 3 hydrogen, and there is a pair of electron which is not involved in a bonding. Okay, clear? Now, very important that what should be the test for the presence of ammonia. So as this is a basic gas, so normally हम litmus test करते हैं. Litmus test क्या होता है? You bring the moist red litmus paper towards a gas jar or near the gas jar in which you have ammonia. It turns blue. Okay, and ammonia is manufactured by Haber's process. Or ammonia is basically the main constituent or the reactant of फर्टिलाइजर. ठीक है, इसलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. देखो किसी भी कंट्री की एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अमोनिया इज बेसिकली यूज्ड इन द फॉर्मेशन फर्टिलाइजर, इसलिए हम अमोनिया को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं. ठीक है, हेबर्स प्रोसेस की इक्वेशन आप सबको याद होगी. मैं पूरा इक्विलिब्रिया हेबर्स प्रोसेस से ही पढ़ाता हूँ या कॉन्टैक्ट प्रोसेस से. सो इन दिस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन फॉर्मिंग अमोनिया, यू शुड नो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. You should know the source of nitrogen. लिखा हुआ है from fractional distillation of liquid air. fractional distillation से पहले एयर को लिक्विफाई किया जाता है. ठीक है, लो टेम्परेचर पे. एंड देन हाइड्रोजन की सोर्स है क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन. आयरन, सॉलिड आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. तो ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कैटलिस्ट क्या है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, clear? Now this is all the recommendation for getting more and more ammonia by applying the equilibrium concept. ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास the overall enthalpy change of this reaction is negative. ये एक exothermic reaction है. Normally besides few common example, we cannot predict about any unknown chemical equation that it's going to be an endothermic or exothermic. लेकिन इसको तो ऐसी equations के बारे में given होगा. So this is an exothermic chemical reaction. ठीक है, clear? So अगर हमें अब ज्यादा से ज्यादा अमोनिया चाहिए, तो the first key point is terms of amount or concentration. ठीक है, so we can add more nitrogen and hydrogen to shift the equilibrium towards right hand side and we get more and more products. So हमारा हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को और ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, कंटिन्यूअसली ऐड करना पड़ेगा, और we can continuously remove product. इस तरह हमारा इक्विलिब्रियम राइट साइड पे रहेगा. As you have more number of moles on the reactant side, less number of moles on the product side. So you can, the recommendation is you should use high pressure to shift the equilibrium towards ammonia side to get more and more ammonia. As the forward reaction is exothermic, so you should use a low temperature, because low temperature shift the equilibrium towards forward direction. Forward direction is exothermic. ठीक है, and use a catalyst to get equilibrium early or to increase the rate of reaction. ठीक है, जो इक्विलिब्रियम अभी पढ़कर आए हो बेटा, उसकी बेसिस पे आपने ये सारी चीजें रिकमेंड करी हैं. और these are the operating condition. Temperature 450, pressure 200 atmosphere, and catalyst is the iron catalyst. So according to the recommendation, these conditions are okay, but we recommend high pressure, and they are using, in terms of industrial process, they are using a moderate pressure. ठीक है, तो सवाल ये है कि आपने हाई प्रेशर यूज रिकमेंड किया और ये मॉडरेट प्रेशर यूज कर रहे हैं. आपने लो टेम्परेचर रिकमेंड किया, बट दे आर यूजिंग अ फेयरली मॉडरेट टेम्परेचर या फेयरली हाई टेम्परेचर. ठीक है, तो उसका रीजन पूछा जाता है. क्लियर? रीजन ये है कि 450 लो टेम्परेचर रिकमेंडेड था, आपने मॉडरेट क्यों यूज किया या हाई क्यों यूज किया? तो आप बोलेंगे लो टेम्परेचर रिकमेंडेड, बट इट शुड नॉट बी वेरी लो, बिकॉज एट वेरी लो द टेम्परेचर, the rate of reaction decreases. इक्विलिब्रियम तो राइट साइड पे शिफ्ट होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट डिक्रीज हो जाता है. लो प्रेशर इज हाई प्रेशर इज रिकमेंडेड, बट द प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, because very high pressure is uneconomical, because you have to increase the thickness for all the piping, all the containers, all the reaction vessel, which increase the plant cost. ठीक है, क्लियर है? प्लांट कॉस्ट इंक्रीज, अनइकोनॉमिकल की टर्म आप यूज करेंगे. तो ये दो रीजनिंग बहुत कॉमन है एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ पेपर 2. आपने पास पेपर किए होंगे तो आपसे बार बार ये सवाल
पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लियर। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर रिकमेंडेड है, बट वी आर यूजिंग लो मॉडरेट प्रेशर बिकॉज हाई प्रेशर इज अनइकोनॉमिकल, ठीक है। लो टेम्परेचर इज रिकमेंडेड बट वी आर यूजिंग अ मॉडरेट टेम्परेचर बिकॉज लो टेम्परेचर decreases the rate of reaction, ठीक है, clear. And this is the flow diagram. You have the source from which nitrogen and hydrogen is coming going into a reaction vessel. We have where you have a where you have a iron catalyst, ठीक है. You provide all the conditions of temperature and a pressure like 450 degrees Celsius, 200 atmosphere, ammonia is formed. With ammonia, if you have some unreacted nitrogen and hydrogen, by the recycling loop, they're going back into the reaction vessel. ठीक है, तो एक जर्नल फ्लो डायग्राम को हो सकता है लेबल करने के लिए आ जाए कि ये जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एरोज लिखे हुए हैं, हो सकता है यहाँ पर वो आपसे पूछ ले कि क्या होगा, अमोनिया के साइड पे वो आपसे पूछ सकता है क्या होगा। तो इस डायग्राम से एमसीक्यूज इन टर्म्स ऑफ फ्लो चार्ट पूछे जाते हैं। इफ यू डन द पास्ट पेपर आपने देखे होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन अमोनिया लीड टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर. Fertilizer are basically the chemicals that are essential for the plant growth, and the fertilizer must contain 3 different elements: nitrogen, phosphorus and potassium, ठीक है। इसलिए all ammonium salt, because they contain nitrogen in ammonium, they can be used as a fertilizer, ठीक है। तो ammonium sulfate, potassium sulfate, ammonium phosphate, they all can be used as a fertilizer. Any fertilizer that have the higher percentage of nitrogen, phosphorus or potassium should be is a good fertilizer. ऐसा कोई भी fertilizer जिसमें इन 3 एलिमेंट्स या इनमें से किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी, वो एक अच्छा फर्टिलाइजर होगा, ठीक है। ऑल अमोनियम फर्टिलाइजर कैन बी मेड बाय रिएक्टिंग अमोनिया विद एनी एसिड। जैसे अमोनिया को सल्फ्यूरिक एसिड से आपने रिएक्ट करवाया, अमोनियम सल्फेट बना, इट्स अ सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट है तो इट्स अ फर्टिलाइजर। अमोनिया विद फॉस्फोरिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम फॉस्फेट इज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। तो मैंने एंड में नोट लिखा है कि a good fertilizer must contain the large percentage of these essential elements: nitrogen, phosphorus and potassium, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट में से which one is a good fertilizer, तो आप बोलेंगे सर अमोनियम फॉस्फेट, because it contains 2 essential elements which is nitrogen and phosphorus, ठीक है, clear. With this fertilizer there is an environmental issue which is called the eutrophication. Eutrophication का नोट था कि this is basically the environmental issue caused by the excessive use of fertilizer, ठीक है। If you use the excess amount of fertilizer, the excess fertilizer goes into the rivers by the rainwater, ठीक है, it remain in a soil and by the rain with the help of a rainwater, it goes into river. It increases the growth of algae or plants on the surface of the river, which prevent the sunlight to enter into the river, ठीक है। Because of it the aquatic life disturb, उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और aquatic life disturb हो जाती है। तो you should be able to write down few lines about the eutrophication, ठीक है। eutrophication की को रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, यूट्रोफिकेशन को रिजॉल्व करने का तरीका है यूज राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एट द राइट टाइम, यूज द राइट अमाउंट ऑफ, उसी वक्त उसको यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर। यहाँ भी लिखा हुआ, ठीक है, सही। जो यूट्रोफिकेशन लिख लीजिएगा, अगर नहीं हो तो मुझे बता दिएगा, सेंड यू लाइंस अबाउट यूट्रोफिकेशन। वैसे बहुत आसान है, आप सबके पास होगा, ठीक है। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर की वजह से द फर्टिलाइजर रिमेन्स इन अ सॉइल, with the rainwater it goes into the river, increase the growth of algae or a plant on the surface of the river, which prevent the sunlight and oxygen to enter into the river water, due to which the aquatic life die out. And solution, use the right amount of fertilizer at the right time, ठीक है। so nitrogen important topic है because nitrogen lead towards ammonia,
कॉन्टैक्ट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट है, तो इससे एक पेपर 2 का क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू तो आते ही हैं, ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू रिवाइज। सल्फर इज नॉट एज लेंदी एज नाइट्रोजन, आसान है और एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। सल्फर इज बेसिकली अ नॉन मेटल व्हिच बिलोंग टू ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, प्रोटॉन नंबर 16, न्यूक्लियन नंबर 32। सल्फर नॉर्मली और येलो सॉलिड में वजह से क्लोरीन सी, बट यू शुड नो द कलर ऑफ सल्फर सॉलिड, इट इज अ येलो सॉलिड, ठीक है। इट ऑलवेज रिएक्ट फॉर्मिंग अ चार्ज ऑफ 2 minus because it belongs to group 6 of the periodic table, ठीक है। मेन कंपाउंड जिनकी वजह से सल्फर इंपॉर्टेंट है वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर trioxide, because these oxides of sulfur are used in the formation of a very important chemical which is called sulfuric acid, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड sulfuric acid, these are basically important for important compounds of sulfur, ठीक है। अब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की बात करते हैं, तो यस, सल्फर बर्न इन ऑक्सीजन forming sulfur dioxide, ठीक है, and this sulfur dioxide goes into the atmosphere, further oxidized to sulfur trioxide, ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है, and this sulfur trioxide basically mixed with rainwater forming sulfuric acid, क्लियर है, नजर आ रहे हैं ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है, क्लियर। अभी एसिड रेन में हम इसे दोबारा पढ़ेंगे, देखिए दोबारा इक्वेशंस क्या इन्वॉल्व में, H+O2 फॉर्मिंग SO2, दिस इज द कंबस्शन। अच्छा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, so basically is the combustion of fuel or combustion of coal, basically coal power station से sulfur मिलता है, because normally the reservoir of sulfur is always naturally near to the reservoir where you have coal present, जहां भी coal के reservoir है, सल्फर के reservoir उससे बहुत करीब होते हैं, ठीक है। तो जब सल्फर बर्न होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, this sulfur dioxide goes into the atmosphere, ठीक है, and then convert into sulfur trioxide. So sulfur dioxide and trioxide both are acidic gases. Sulfur trioxide basically reacts with rainwater forming sulfuric acid. ठीक है बेटा, एसिड रेन से मुतालिक आपको पता होना चाहिए कि the presence of oxides of sulfur and nitrogen are basically forming react with rainwater forming acids, and these acids are basically called causing acid rain, ठीक है। तो एसिड रेन की जो मेन इक्वेशन है ना बेटा, वो ये वाली है, SO3 plus H2O forming H2SO4। so जो इक्वेशंस बेसिकली एसिड रेन में इन्वॉल्व है, लेट मी राइट इट डाउन हियर, देखिए एसिड रेन की जो सारी इक्वेशंस हैं वो बेसिकली ये वाली है, यू हैव, देखो, सल्फर सॉलिड प्लस O2 forming sulfur dioxide gas, ठीक है। Sulfur dioxide gas goes into the atmosphere, further react with oxygen by a reversible reaction forming SO3 gas, ठीक है। This SO3 gas reacts with rainwater which is H2O forming H2SO4, ठीक है। So this is basically the acid rain, clear, and same applies for nitrogen। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो NO2 फॉर्म करते हैं, ठीक है, NO2 reacts with rainwater forming nitric acid, ठीक है। तो एसिड रेन के दो सोर्सेज है बेटा, एक सोर्स क्या है, दो सोर्सेज कह सकते हैं, एक सोर्स है बेसिकली ऑक्साइड ऑफ सल्फर व्हिच इज SO2 एंड SO3, एक सोर्स है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन व्हिच इज NO2, ठीक है, क्लियर है। NO2 बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है इन एसिड रेन इन टू डिफरेंट वेज। सबसे पहले तो नाइट्रोजन बर्न होता है इन इंटरनल कंबस्शन, कार इंजन में बर्न होता है, ठीक है। बर्न होने के बाद क्या होता है, बर्न होने के बाद,
वो NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। और ये जो NO2 की फॉर्मेशन है ये सिर्फ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होती है, इसलिए ऑल द कंबस्टन इंजन बेसिकली आर द पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो दीज आर द two sources by which you have NO2 production and lightning during the thunderstorm। ये दो की पॉइंट याद रखिएगा, सिर्फ यहीं से आपके पास जो है वो NO2 प्रोड्यूस होती है, ठीक है। NO2 कंट्रीब्यूट इन एसिड रेन इन टू वेज, दो तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। एक तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है कि NO2 रिएक्ट करेगी किसके साथ बेटा, रेन वाटर के साथ और फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एंड नाइट्रिक एसिड इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आपको अभी इक्वेशन मैंने पढ़ाई ना, SO2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग SO3, तो बेसिकली इस रिएक्शन में NO2 इज समटाइम एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। और SO3 बन जाता है, SO3 बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है, क्लियर। सो दिस इज बेसिकली, ये मैंने यहीं पर आपको रोल ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर दोबारा से लिखा है, वही सारी चीजें कि SO2 बनता है, SO2 SO3 में जाता है, SO3 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है, क्लियर। तो ये वो इक्वेशन जो मैंने यहाँ सम अप करके ग्रीन से लिखी है, ठीक है, यही सारी इक्वेशन जो है वो यहाँ मैंने आपको दोबारा लिख पाई थी, क्लियर। और लाइक द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन आपके सामने है कि एसिड रेन जो है वो बिल्डिंग को डैमेज करता है, एसिडिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज कर देता है, हार्मफुल फॉर एटमॉस्फेयर या ह्यूमंस के लिए कि उनके स्किन और हेयर को डैमेज कर देता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का बिट ऑफ इंट्रोडक्शन, इट्स अ स्ट्रांग एसिड, इट गिव 2H पॉजिटिव आयन and it is a very important chem. You should know the ionization of sulfuric acid, ठीक है, ये ionization आपको पता होनी चाहिए कि H2SO4 आयनाइज होके 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस फॉर्म करता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, रॉ मटेरियल आपके पास है सल्फर प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग, सॉरी सल्फर प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। स्टेप 1 में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है कि सल्फर को कंबस्ट किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जाता है। सेकंड स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में चला जाता है बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगेन दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें भी आप वही चीजें कोट करेंगे कि एज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो आप टेम्परेचर लो रिकमेंड करेंगे, प्रेशर हाई रिकमेंड करेंगे। यहाँ कैटलिस्ट यूज होता है वेनेडियम 5 ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5, टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 2 to 3 एटमॉस्फेयर एंड द कैटलिस्ट इज V2O5। कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हेबर प्रोसेस, इनकी इक्वेशंस बेटा और इनकी ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। और फिर सल्फ्यूरिक एसिड SO2 जब आप क्यों बन जाता है, स्टेप 3 में SO3 में स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है, ठीक है, बाय विच द ओलियम इज फॉर्म। ओलियम इज बेसिकली द हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप अपनी पसंद की कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंगली डाइल्यूट कर सकते हैं। इक्वेशंस याद कर लेना, याद करके एक जगह पे इक्वेशंस को लिख लेना, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। वेपर प्रोसेस में तो कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 3-4 इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं। पहले S प्लस O2 फॉर्मिंग SO2, फिर SO2 प्लस O2 फॉर्मिंग SO3, SO3 प्लस H2SO4, H2S2O7 विच इज ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला एक दफा दोबारा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड फिर ओलियम में आप वाटर ऐड करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाते हैं, ठीक है। H2S2O7 प्लस H2O में आप वाटर ऐड करेंगे और you'll get 2 moles, ठीक है। अब सवाल ये है कि SO3 रेन वाटर में, एसिड रेन में SO3 में रेन वाटर मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। व्हाई वी आर नॉट एडिंग SO3 में डायरेक्टली वाटर टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसका रीजन लिखा है, देखो एक्सप्लेन वाटर, व्हाई वाटर इज नॉट एडेड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड में जब आप वाटर ऐड करते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एंड देयर इज अ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म। सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट या फ्यूम्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू कंडेंस, ठीक है। उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम पहले ओलियम बनाते हैं, फिर ओलियम को हम अपनी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसे डाइल्यूट कर लेते हैं। एंड दीज आर द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, क्लियर।
सही है। लीडिंग इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस आपको अच्छी तरह पता है कि टेक्सटाइल में, रबर में और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, कार बैटरीज में यूज होता है, ठीक है, एंड इट कैन बी यूज इन अ फर्टिलाइजर एज वेल, ठीक है, क्लियर। टू एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ही जब एसिड रेन की बात आई है तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो कुछ पॉइजनस गैसेस होती हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ कार्बन, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जिनको रिमूव करने के लिए हम कैटालाइटिक कन्वर्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर की इक्वेशन है, समी ने मुझे रिमाइंडर दिया था कि हमें ये करवा दीजिएगा, ठीक है। कैटालाइटिक कन्वर्टर बेसिकली all these modern cars are fitted with a catalytic converter, and this catalytic converter is basically remove harmful poisonous gases from fumes from exhaust engine, ठीक है, remove harmful gases, ठीक है। Mainly it is used for the removal of carbon monoxide and nitrogen monoxide. वैसे हाइड्रोकार्बन्स के लिए भी यूज होता है, लेकिन मेनली फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, क्लियर। इन कैटालाइटिक कन्वर्टर प्लैटिनियम और रोडियम आर बेसिकली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, और वैसे भी पीडी पोलोडियम भी यूज हो सकता है। इनमें से कोई भी एक कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। एंड द इक्वेशन इन्वॉल्व इज क्वाइट इजी, यू हैव कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, and these two are basically the harmful gases, ये दोनों harmful poisonous gases हैं, ठीक है। catalytic converter convert into carbon dioxide and N2, although carbon dioxide is a greenhouse gas, लेकिन फिर भी उतनी harmful नहीं है जितनी carbon monoxide और nitrogen. So this is the equation involved, and you can use any catalyst, platinum, rhodium or palladium catalyst, ठीक है, clear। सही है, इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। टू बैलेंस दिस इक्वेशन, आई थिंक इफ आई प्लेस 2 हियर एंड 2 है तो 2 भी यहाँ लगा देंगे, 2 to the 4, सो या आई थिंक इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन नाउ, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन। हाँ, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर आपसे इक्वेशन पूछी, वैसे ओ लेवल्स में हाइड्रोकार्बन वाली इक्वेशन नहीं पूछी जाती, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर अगर पूछी भी जाती है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज तक नहीं देखी, देख लीजिएगा इफ दे आस्क, तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली हाइड्रोकार्बन की इक्वेशन यहाँ पर नहीं पूछी जाती, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कन्वर्टिंग मोर हार्मफुल गैसेस इनटू लेस हार्मफुल गैसेस, कन्वर्ट्स ठीक है बेटा। सो दिस इज इट। अच्छा, एक की पॉइंट और याद रखिएगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है, जिनसे रिलेटेड जो इशू है दैट्स बेसिकली द ग्लोबल वार्मिंग। आप सबको पता है, मैं सिर्फ रिमाइंडर दे रहा हूँ। और ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं बेटा? So the greenhouse gases are basically carbon dioxide gas and hydrocarbons. ठीक है? These are the greenhouse gases that create a global warming. Global warming से related जो issues हैं वो हर आप एक normal बच्चा अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है? इसी तरह से हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जिनको हम CFCs कहते हैं, ठीक है। These CFCs are responsible for depletion of ozone layer.
ठीक है, clear? CFCs, chlorofluorocarbon. Now let me just give you the example of CFCs. कार्बन होगा, साथ में क्लोरीन लगे हुए होंगे और फ्लोरीन लगे होंगे. इट कुड बी एनी नंबर ऑफ क्लोरीन और फ्लोरीन. इनको हम CFCs कहते हैं. ठीक है, क्लियर? एंड these CFCs convert ozone which is O3 into oxygen. O2 में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए और यहाँ पर 3 लगा दीजिए. क्लियर? सो दे कन्वर्ट ओजोन इनटू ऑक्सीजन. क्लियर? किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है CFCs की वजह से. तो दिस इज बेसिकली द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज बेसिकली डिप्लेशन. डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर. ठीक है, सो देख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, कैटालिटिक कन्वर्टर एंड डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर. समथिंग अबाउट द एनवायरनमेंट. सो कीपिंग इट टिल हियर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन पूछिए बेटा मुझसे. ठीक है, so I'm just keeping it till here for today, and see you inshallah tomorrow with the next class and next topic. Sir?